Yeah, so my name is Ali, and I have no preferred pronouns. So yeah. My preferred pronouns are he or they. Let's go around the room. Opening government, आपका speaking order, or if you have pronouns, then let me know. ہمارے پہلے مقرر منیب ہے اور دوسرے مقرر شاہجہان ہے and the preferred gender pronouns of both of these people are he and them. Okay. ایک منٹ مجھے Okay. Opening opposition. ہمارے پہلے مقرر ارحم طارق ہیں، دوسرے مقرر سید محمد عبداللہ ہے، اور ہم دونوں کے جینڈر پروناؤنس ہی اینڈ ہم ہیں. Closing government. First speaker Anam Nasir, and second speaker Hamza Dar. My pronouns are she/her, Hamza ke he/them. Okay. Closing up. Hello, all. Are all the teams present in this room? Well, they seem to be, but one of them is not replying. Closing up. They're there. Which one is it? No, it's fine. They're there. Hassan Okay, Najaz okay, and bye. Farooq Shah. Alrighty. So, without further ado, I'll call the house to order. POIs chat پہ رکھیے گا. اگر کسی اسپیکر نے کسی دوسری طریقے سے POIs لینے ہیں تو وہ اپنی اسپیچ کی سٹارٹ پہ اسپیسیفائی کر دیں کہ ویڈیو کے تھرو یا آڈیو انٹرپشن ان کے لیے صحیح ہے. I request all of the speakers to honor the POI specificity of the speaker that has requested it. And once again, I'd like to remind everyone that POIs are an element of the game that show good engagement. Whilst they're not mandatory, please do take POIs. They're good for engagement. And, you know, judges ke upar bura mark hota hai agar aap POIs na le. With that said, I invite the Prime Minister to open the debate for the motion that stands in their name. Here. Am I audible? Yes, you are. Okay, I will be starting in 3, 2, 1. آج کی اس معزز زبان میں سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری آرٹ سے کیا مراد ہے اور آرٹ کسی بھی معاشرے میں ایک کلیدی کردار ادا کیوں کرتی ہے. آرٹ سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی جو عکاسی ہے وہ ہسٹوریکلی کی جائے, وہ ثقافتی طور پہ کی جائے. ثقافت سے مراد اس معاشرے کے رسم و رواج ہیں جو کسی خاص کمیونٹی کے کسی عرصے میں رہے ہوتے ہیں. تاریخی طور پر اس کی کمیونٹی کی جس سے ریلیٹڈ وہ آرٹ ہے, تمام تاریخی سٹرگلز ہیں, وہ جد و جہدیں ہیں جو انہوں نے تاریخ میں کی ہیں. آرٹ اس ڈبیٹ کا بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے. ہمیں لگتا ہے کہ آرٹ جب بھی فارم کی جاتی ہے یا آرٹ کا مارز وجود میں آنا ہی جب بھی وہ مارز وجود میں آتی ہے وہ ان تمام لوگوں کے وسائلوں کو بروئے کار لائے ہوئے آتی ہے جن لوگوں پر وہ آرٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص اگر کسی برٹش کالونی کے اندر کوئی 100 مزدور جو ہیں انہوں نے ایک خاص قسم کا پیس کریٹ کیا ہے, کوئی آرکیٹیکچر کریٹ کیا ہے, تو ہمیں لگتا ہے اس کے اندر ان کی لیبر بھی ملوث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی اٹیچڈ ہے جو کہ ان کی آئیڈینٹی وغیرہ کو ہائی لائٹ کرنے میں فیوچر کے اندر کام آتا ہے. نجی ملکیت سے ہماری کیا مراد ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ نجی ملکیت آرٹ کو ریسٹرکٹ کرتی ہے کیونکہ نجی ملکیت کی وجہ سے آرٹ کی جو ایکسس ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی ہے. وہ کیسے نہیں پہنچ سکتی ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ معاشرے میں موجود لوگ جو کہ آلریڈی انڈر پریویلیجڈ ہیں, جن کے پاس اکنامکلی اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ کسی آرٹ کو خرید سکے, کیونکہ یہ تمام کے تمام پروفٹ اور پرائیویٹ آرگنائزیشن 3 چیزوں پہ چلتی ہیں. نمبر 1 پروفٹس, نمبر 2 ان کے انویسٹرز, اور ہمیں لگتا ہے انویسٹرز بھی موسٹلی پریویلیج کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سوشو اکنامک
اکنامک بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ بہت متاثر کن ہوتا ہے اور وہ اکثریت میں پائے جاتے ہیں. تیسری طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو آرٹ وغیرہ ہے یہ آج کی 21ویں صدی کے اندر ایک پاپ کلچر میں ٹرانسینڈ ہو چکی ہے, اور اس پاپ کلچر میں ٹرانسینڈ ہونے کی وجہ سے اس میں کمپیٹیٹیونیس کا جو عنصر ہے اس نے آرٹ پیسز وغیرہ کی جو ویلیو ہے, جو ورتھ ہے, اس کو بڑھا دیا ہے. تو کسی بھی صورت میں وہ انڈر پریویلیج کمیونٹی اس آرٹ وغیرہ کو افورڈ نہیں کر سکتی. جب وہ آلریڈی اکنامک طور پر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسے افورڈ کر سکیں, ہمیں لگتا ہے وہ اس کو ایکسیس بھی نہیں کر سکتی, اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو 3 ہارمز بتائیں گے, 3 باتیں کریں گے PM1 سپیچ میں. سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اپنی آئیڈینٹی سے ایک ڈس ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی ہے. دوسری سطح پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کی جو ہسٹورک سٹرگلز وغیرہ آپ انہیں بیک سٹیپ کرتے ہیں اور وہ کیسے پرابلمٹک ہے. اور تیسری سطح پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ پرائیویٹائزیشن سے جو ہارمز وغیرہ ہیں وہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں بنسبت اس کے جب آپ اس پرائیویٹائزیشن پر پابندی لگائیں گے. پہلا لائن آف انالیسس, ہمیں لگتا ہے کہ کیسے یہ کسی بھی کمیونٹی کا ایک پرنسپلی جسٹیفائڈ چیز ہے کہ جو آرٹ یا تو ان کے فور فادرز نے بلڈ کیا ہے یا پھر ان کے فور فادرز کی لائفز پر بلڈ ہوئی ہے, وہ اس کو ایکسیس کر سکے, کیونکہ انہوں نے ایکٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے اس آرٹ کو تجویز کرنے میں, اس آرٹ کو فارم کرنے میں. ایکٹیو کنٹریبیوشن سے ہماری کیا مراد ہے؟ ایکٹیو کنٹریبیوشن سے مراد یہ ہے کہ وہ ایکٹیولی انہوں نے اپنی انرجیز, اپنے وسائل اور اپنی تمام ایموشنل ٹینڈنسیز اس آرٹ کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. جب آپ اسے ایکٹیولی انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے تو آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس پر ایکسیس پائیں, اور ایکسیس تبھی ملے گی جب وہ پرائیویٹائز نہیں ہوگی, جب اس کی قیمتیں وغیرہ اتنی عروج پر نہیں ہوں گی. دوسری سطح کے اوپر اس چیز کا تجزیہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں لگتا ہے کہ آج کے دور کے اندر انڈر پریویلیج ایریاز میں جو سکولز وغیرہ ہیں وہ آپ کو بہترین, اور نمبر 2 پہلی بات وہ سکولز وغیرہ جو ہے وہ پریویلیج جو مافیا ہے معاشرے کا اس سے بہت انسپائرڈ ہوتے ہیں. دوسری سطح کے اوپر ادھر اویئرنیس وغیرہ اتنی نہیں پائی جاتی. ہمیں لگتا ہے انڈر پریویلیج ایریاز کے اندر جب اویئرنیس وغیرہ اتنی نہیں پائی جاتی تو یہ سکولز کبھی بھی آپ کو آئیڈینٹی, اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایسوسیشن نہیں سکھاتے ہیں, اور نہ ہی آپ کو ووٹنگ رائٹس وغیرہ کے بارے میں اتنا کچھ بتاتے ہیں. تو ایک اسٹرکچرل چینج یا تبھی آ سکتا ہے جب آپ کو اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں نو ہاؤ ہو, یا پھر آپ یہ جانتے ہو کہ معاشرے میں آپ کی امپورٹنس کیا ہے یا آپ کی آئیڈینٹی کیسے رول پلے کرتی آئی ہے ان پاور سٹرکچر سے لڑنے میں. اب جب وہ تمام مینز, اور دوسرا مین پاپولر میڈیا ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے پاپولر میڈیا بھی ہمیشہ جو پاور سٹرکچر میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. ایک کیپٹلسٹک انٹرسٹ کی وجہ سے, بی کیونکہ انہیں قدغنوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ پاور سٹرکچر وغیرہ ہم پہ قدغنے نہ لگا دیں. تو اس ماڈل کے اندر نہ تو سکولز آپ کو آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ ایسوسیشن بابر کروا پا رہے ہیں, نہ ہی پاپولر میڈیا آپ کو آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ ایسوسیشن بابر کروا پا رہا ہے. ہمیں لگتا ہے تو اس میں جو ہسٹوریکل جو آرٹ ہے اس کا کردار بہت کلیدی ہے, اس کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہی وہ آرٹ ہے جو آپ کو اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایک خاص قسم کا رویہ یا ایک خاص قسم کی ایسوسیشن پاور کرواتی ہے. اس ایسوسیشن کے گراؤنڈ لیول پر امپیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ پہلی سطح پر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, ہم تاریخی طور پر, کیونکہ ہسٹوریکل ورڈ یوز ہوا ہے موشن میں, ہم تاریخی طور پر کس طرح سے اوپریسڈ ہوتے آئے ہیں یا پھر ہم نے تاریخی طور پہ کس طرح سے ایوالو کیا ہے. وہ آرٹ کی فارم میں آپ کی ایک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جو آپ کو یہ سب چیزیں بتاتی ہے. اس کا پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں ایک جنرلی اویئر سٹیزن بن سکتے ہیں اور آپ اپنا پولیٹیکل اپریٹسز وغیرہ میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ایک سوشل چینج کے لیے. اس کا دوسرا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کیسے آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کی, اور یہی میرا دوسرا انالیسس ہے, کہ کیسے آپ کی آئیڈینٹی کی ایک پوری پولیٹیکل اسٹرگل رہی ہے. آپ نے کلونیلزم وغیرہ کے خلاف لڑا ہے, آپ نے پاور سٹرکچرز کے خلاف لڑا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ آرٹ میں, کیونکہ آرٹ معاشرے کی ہی عکاسی ہے, یہ عکاسی بھی کی جاتی ہے. جب یہ عکاسی کی جاتی ہے تو آپ اس چیز کو باور کرتے ہیں کہ ہمارے پہ کچھ ذمہ داری ہیں. وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کچھ خاص قسم کے پروگرامز یا ایجنڈاز کو پرسو کیا تھا. اب ہم پر بھی یہ مورل آبلیگیشن ہوتا ہے کہ ہم ان ایجنڈاز کو پرسو کریں. وہ ایجنڈاز کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں؟ وہ ایجنڈاز اس نوعیت کے ہو سکتے ہیں کہ ہم نے بھی پاور سٹرکچرز کے خلاف لڑنا ہے, یا ہم نے بھی ریزسٹنس شو
کرنی ہے, ہم ایزیلی گیو اوے نہیں کر سکتے, گیو اپ نہیں کر سکتے. اس سے امپیکٹ کیا جنریٹ ہوتا ہے؟ آپ زیادہ پولیٹیسائز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ سوسائٹی میں ایک ایکٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں, اور تیسری سطح پہ آن اے پرنسپل لیول ہمیں لگتا ہے کہ آپ یہ آبلیگیشن کو فلفل کرنے کے زیادہ اہل ہوتے ہیں کہ ہمارے باوجود کی جو ہسٹوریکل اسٹرگلز ہیں ہم انہیں بیک اسٹیپ نہیں کر سکتے. آج اوپننگ گورنمنٹ یہ میچ اپوزیشن پر اس طرح سے برڈن ڈالتی ہے کہ یہاں تو آ کر ثابت کریں کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد جو ایکسیس ہے وہ جو اکنامک ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہیں ان تک پہنچتی ہے. دوسری سطح پر آ کر ثابت کریں کہ کیسے آرٹ کا تعلق ہسٹوریکلی ان تمام چیزوں سے نہیں ہے اور کیسے یہ پولیٹیسائزیشن میں ایکٹیو کردار ادا نہیں کرتی. بہت شکریہ. I thank the first speaker for that fine speech and would invite the leader of the opposition to begin the debate for the opposition bench. Here. Is it okay if I share the timer just to make it easier for everyone? I'm fine with that. علی میاں اس سے اسکرین ریکارڈنگ کا ایشو آتا ہے اپیرنٹلی, وہ وائس ریکارڈ نہیں کرتا پھر باقیوں کی اگر آپ اسکرین شیئر کرتے ہو تو اس لیے ہم ٹائمر شیئر نہیں کر Oh, رہے, all چیٹ right, میں all لکھنا پڑتا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی بالکل. اسٹارٹنگ ان 3, 2, 1. آج کی حزب موافقت, ابتدائی حزب موافقت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک لینس سے آرٹ کو دیکھ رہے ہیں اور آرٹ کو کیسی آرٹ کی پرائیویٹ اونرشپ کو دیکھتے آ رہے ہیں. یہ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ نجی آرٹ لوگوں تک ایکسیسیبل نہیں ہے. جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے پاس اس آرٹ کو رکھتے ہیں اور اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. دو ریسپانسز اس آرگومنٹ کے اوپر. نمبر ایک, اگر ایک امیر آدمی جو کہ کیپٹل کا اتنا بھوکا ہے, وہ سوشل کیپٹل کا بھی اتنا ہی بھوکا ہوگا آپ کے کیس کے اندر, اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس آرٹ کو جا کر شو آف کرے, عوام کو دکھائے یا پھر دوسرے معاملات کرے جس کے اندر وہ دکھائے اور اپنا سوشل کیپٹل دکھائے کہ بھائی ہم نے یہ آرٹ جو ہے کتنا دیکھو کتنا خریدا ہے. وہ اس کے اوپر پرائیویٹ ایگزیبیشن کروائے اور لوگوں کو بلائے. دوسرا رسپانس کیا ہے, یہ جو امپیکٹ گنوا کر جا رہے ہیں کہ نجی آرٹ جو ہے وہ لوگوں تک ایکسیسیبل نہیں ہے کیونکہ لوگ خرید کے اس آرٹ کو الماری میں ڈال دیتے ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ آف آرٹ دو طریقوں سے پیش آتی ہے. ایک, آپ اس آرٹ کو بیچ سکتے ہو کسی دوسرے بندے کو, تو دوسری بات, آپ پرائیویٹ ایگزیبیشن کروا سکتے ہو جہاں کے پر لوگ آتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. جیسے گورنمنٹ نے آرٹ کے اوپر یعنی بادشاہی مسجد کے اوپر ایک ریونیو لگایا ہوا ہے کہ ہم اتنا پیسہ لیں گے تو تبھی آپ کو انٹرنس فی دیں گے. تو آپ آ کے اس آرٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ جو امپیکٹ اور انالیسس یہ گنوانا چاہ رہے ہیں اپنی پوری آرگیومنٹ سے, وہ اس فریمنگ سے باہر گر جاتا ہے. یہ اس آرٹ کو ڈیل ہی نہیں کرتے جو کہ ایک پرائیویٹ ایگزیبیشن میں پڑا ہوا ہے, عام لوگ اور عام عوام اس کو پیسے دے کے یا پھر تھوڑے بہت 10-20 روپے پیسے دے کے ایکسیس کر رہی ہے. اس کیس کو یہ ڈیل کر کے نہیں جاتے. دوسری بات یہ کہہ کے آتے ہیں کہ اس آرٹ کو بنانے میں جو ایکٹیو کنٹریبیوشن ہے وہ عوام نے دی ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ دوبارہ سے یہ ایک منیمل چیز کو, منیمل امپیکٹ کو ایک میکسیمم امپیکٹ کر کے دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آرٹ کے اندر ہمیشہ عوام کا کردار نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ بنیادی طور کے اوپر اگر فریدا کالو اپنے سیلف پینٹنگ کر رہی ہے اپنے آپ کو یا اپنے جسم کو, تو اس کے اندر کیا تعلق آ گیا ہے عوام کا اور عوام کی کنٹریبیوشن کا. ہمیں بنیادی چیز طور کے اوپر یہ چیز نہیں سمجھ آتی. جس آرٹ کی آپ بات کروا کے جانا چاہ رہے ہیں یا پھر جس آرٹ کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ تو بہت ہی منیمل کیسز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو آپ امپیکٹ گنوانا چاہ رہے ہیں وہ بڑا مارجنل ہے. تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹی کے ذریعے ہم نو ہاؤ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو اور یہ سارا ہوگا ہم آئیڈینٹی کے ذریعے
ان کی آئیڈینٹی اس آرٹ کے ذریعے سے دکھا سکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آئیڈینٹی دکھانے کے دو رسپانسز کے اوپر ہمیں لگتا ہے آئیڈینٹی دکھانے کے آپ کے پاس بہت زیادہ ڈفرینٹ طریقے ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ ان کو لٹریچر پڑھا سکتے ہیں, اتنا زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. اگر آپ نے بتانا ہے فیمنسٹ موومنٹ ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ بھائی دیکھو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری بات, آرٹ کو عام عوام کوئی پینٹنگ کو یا پھر ایسی چیزوں کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتی. وہ دوسرے انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر جا سکتے ہیں, وہ when they see us دیکھ سکتے ہیں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ظلم ہونے کے لیے. تو آپ کا ماڈل کے اندر یہ آئیڈینٹی والی آرگومنٹ ایکسکلوسیو کیسے ہے, وہ تو دوسری سائڈ کے اوپر بھی بہتر انداز کے اندر ہو رہی ہے. دوسرا رسپانس اس کے اوپر ہے, ہمیں لگتا ہے کہ جب یہ آرٹ پرائیویٹ گورنمنٹ اونرشپ میں جائے گا تو گورنمنٹ جو کہ پہلے سے ان کی کریکٹرائزیشن ہماری کریکٹرائزیشن کے مطابق نہیں چاہتی کہ لوگوں کو پتا چلے, کیونکہ یہ لوگ اس ریاست کے خلاف کھڑے ہوں گے جو کہ ظلم ڈھاتی ہے اور ظلم کرتی ہے. تو آف کورس پبلک اونرشپ کے اندر بھی وہ آرٹ آف کورس ان لوگوں کو نہیں دکھایا جائے گا. تو جو آپ آرگومنٹ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا اور ہم اتنی بڑی اویئرنیس کریں گے, سمپلی ناٹ ٹرو. ہمارا آج پازیٹیو کیس کیا ہے, میں آ کر بات کروں گا آرٹ کے پر, اس کا کمپیریٹیو ڈرا کروں گا جو کہ میجر سٹیک ہولڈر ہے اس ڈیبیٹ کا. دوسری سطح کے پر ہمارے پاس ہے دوسری سطح کے پر عبداللہ آ کے دوسرے سٹیک ہولڈرز کا تجزیہ کریں گے. آج کریکٹرائزیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے آرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو آرٹ لوگ دیکھنے آتے ہیں یا پھر دیکھنے آتے ہیں, ٹورسٹ دیکھنے آتے ہیں, ایک ثقافتی بلڈنگ ہو گئی یا ثقافتی آرٹ ہو گیا کسی جگہ کا, تو زیادہ تر جو پرائیویٹ اونرشپ کے اندر ایگزسٹنگ آرٹ ہے وہ پاکستان جیسے ممالک کے اندر یا دوسرے ممالک کے اندر بڑے دور دراز کے علاقوں میں ایگزسٹ کرتا ہوتا ہے. راجستھان کے اندر اگر آپ قلعہ دیکھیں تو وہ بہت دور دراز کے علاقوں میں ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پہ ٹورسٹ اور دوسرے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں. ان کی مین فوکس آف اٹینشن ممبئی جیسے علاقے ہوتے ہیں, لاہور جیسے علاقے ہوتے ہیں, وہ کبھی بہاولپور کا قلعہ نہیں دیکھنے چاہیں گے اگر وہ اس کے اندر ہوگا. ہماری آرگیومنٹ کیا ہے اس ڈیبیٹ کے اندر کہ بھائی پریزرویشن آف آرٹ کیوں ضروری ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے آرٹ کو بچانا ہے, اس کی انٹرٹینمنٹ اس کی کوالٹی کو قائم رکھنا ہے, تو اس کے لیے پریزرویشن آف آرٹ ضروری ہے. ان کے ماڈل کے اندر حکومت کیا کرتی ہے, وہ اسی آرٹ کو پریزرو کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے اوپر نمبر ایک ان کو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب بھی حکومت ایک آرٹ کو دیکھتی ہے یا پھر ایک بلڈنگ کو دیکھتی ہے تو وہ اس چیز سے دیکھتی ہے, اس لینس سے نہیں دیکھتی کہ یہ کتنی ہمارے لیے کلچرلی سگنیفیکنٹ ہے. وہ اس لینس سے دیکھتی ہے کہ بھائی ہمیں کتنا پیسہ آ رہا ہے اس عمارت سے. اگر اس عمارت سے ان کو پیسہ نہیں آتا, لوگ ٹورسٹ, کیونکہ یہ علاقے یہ ثقافتی علاقہ دور دراز علاقوں کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے اور دور دراز ایریاز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, تو لوگ اور ٹورسٹ زیادہ تر ان علاقوں کے اندر جانا نہیں پسند کرتے. بڑی مائنورٹی آف ٹورزم جاتی ہے جس کی وجہ سے ریاستی اداروں کی ان کی پریزرویشن کے اوپر بہت نقصان ہوتا ہے. ایون اف یہ آگے کہہ جاتے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ جو علاقے ہوتے ہیں یہ لاہور کے علاقے کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوتے ہیں, میجورٹی سٹیز کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوتے ہیں, تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس ڈیبیٹ کے اندر کہ اگر ہم لاہور جائیں گے تو کیونکہ ایک ٹورسٹ یا پھر ایک انسان جو کہ اس آرٹ کو دیکھنے آیا اس کے پاس منیمل ریسورسز ہیں. نمبر ایک, وہ اس آرٹ کی بجائے اس سے پاپولر آرٹ کو دیکھنے کی کوشش کرے گا جو اس سے زیادہ کلچرل سگنیفیکنس رکھتا ہے, اور یہ آرٹ نظر انداز ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے برعکس کمپیریٹو کے اندر ہمیں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے. کمپیریٹو میں ہمیں یہ بنیادی چیز ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ اس آرٹسٹ کا یا پھر اس پرائیویٹ اونر کا سرمایہ اور ویلیو کا ذریعہ ہی وہ آرٹ ہے, کیپٹل ہے, تو وہ کوشش کرے گا دو وجوہات کی بنیاد کے اوپر کہ وہ اس آرٹ کو نمبر ایک اپنے سرمایہ کی مدد سے اور اپنا جو پروفٹ وہ گین کرے وہ اس آرٹ کے اوپر لگائے اور ری انویسٹ کرے. کیونکہ کیپٹلسٹ پرنسپل ہیں کہ بھائی اگر ہمارے ایک آئیڈیا سے پیسہ آ رہا ہے تو ہم نے اس آئیڈیا کے اندر ری انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں لوگ اور پریزرو کرنا ہے اس آئیڈیا کو تاکہ اور زیادہ پیسہ ہمیں آئے. دوسری وجہ کیا ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اونرز کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ اسٹیٹ مشینری اور اسٹیٹ استعمال کرتے ہوئے اس آرٹ کو زیادہ تر یہ نہ کر سکے کہ بھائی اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیٹ اپنے آرٹ کو پروموٹ کرتے رہے اور ان کو آرٹ کو نہ پروموٹ کرے. یہ اپنے آرٹ کو ان کے پر یہ برڈن رہتا ہے اور کمپٹیشن کی بنیاد کے پر پرائیویٹ اونرز کوشش کرتے ہیں کہ اشتہارات دیں اور دوسری طریقوں سے یہ آرٹ کو دکھائیں. فار ایگزامپل اگر بحریہ ٹاؤن کے اندر آئیفل ٹاور کلچرلی سگنیفیکنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ملک ریاض سے, تو آف کورس ملک ریاض اس کے اوپر پش کرتا ہے اور ہر ایڈ کے اندر دکھاتا ہے کہ بھائی دیکھو آئیفل ٹاور ہے,
آپ نیو ایئر بنا رہے پاکستان نہ جاؤ, آپ ایفل ٹاور کے اوپر آ جاؤ, کیونکہ ہم نے ان کو کمپیریٹو کے اوپر بتایا اور بتایا کہ ان کا ہمارے ماڈل کے اندر آرٹ کی پریزرویشن ہو رہی ہے, آرٹ کی کوالٹی امپروو ہو رہی ہے, اور آرٹ لوگوں تک بہت زیادہ ایکسیسیبل ہے کیونکہ پرائیویٹ اونرز اس آرٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس اور ان کے ماڈل کا امپیکٹ جو ہے وہ منیمل آتا ہے, تو اس لیے ابتدائی حزب مخالفت. I thank the leader of the opposition for that fine speech and would like to remind speakers to keep an eye on their time. If they're not timing themselves, you should be timing yourself because that's your job. But if you're not timing yourself, please keep an eye on the chat. I promise you, we stop writing after 7:15. So you're only harming yourself after speaking after 7:15. With that said, I invite the Deputy Prime Minister to continue the debate for the opening half. Here. Hey, am I audible? Yes. Okay, just give me 10 seconds just to put my sheets in order. Sure. Okay, so yeah, I'll be good to go now. Starting in 3, 2, 1. हमें लगता है इस बहस के अंदर मैं अपनी इस तकरीर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रूव करूंगा. नंबर 1, क्यों गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसा कि ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स भी बुरी हो सकती हैं, इज मच मोर लाइकली इन आवर साइड ऑफ द वर्ल्ड. बट सेकेंडली, हाउ प्राइवेटाइजेशन इंक्रीजेस कॉस्ट एंड रिड्यूसेस एक्सेस. इसके अंदर मैं न्यू लेयर्स ऑफ एनालिसिस भी ऐड करूंगा. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आइडेंटिटी को दोबारा से रीहैमर करेंगे बिकॉज दे हैव बीन मिसकंस्ट्रोइंग इट. नंबर 1, प्राइवेटाइजेशन कॉस्ट को necessarily increase क्यों करता है, and this deals with their entire point कि यार कैपिटलिस्ट बंदा है तो उसको प्रॉफिट का इंसेंटिव है तो वो एग्जीबिशंस वगैरह करवा लेगा. नंबर 1, द पॉइंट एट व्हिच यू गिव अ पर्सन अ प्राइवेट ओनरशिप, अब उस बंदे के कंट्रोल में है कि वो एग्जीबिशन करवाए या ना करवाए. मोस्ट पीपल जस्ट सिंपली कीप दिस आर्ट टू देमसेल्व्स, वो एग्जीबिशन वगैरह नहीं करवाते क्योंकि उनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है, ना ही कोई उनको फोर्स कर सकता है कि आप एग्जीबिशन करवाएं या ना करवाएं टू बिगिन विद. नंबर 1. नंबर 2, ऑफ्टन टाइम्स ये जो एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं ये बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन सेंटर्स के अंदर होती हैं, ये बाहर लेके जाके की जाती हैं और लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज को इनकी एक्सेस नहीं होती. अगर ये एग्जीबिशंस लोकली भी करवाई जाती हैं तो हमें लगता है कि क्योंकि इनकी अपनी कैरेक्टराइजेशन के मुताबिक वो एक कैपिटलिस्ट परहैप्स बंदा है तो उसका प्रॉफिट इंसेंटिव होता है. अब इस सिचुएशन के अंदर जब उसका प्रॉफिट इंसेंटिव होता है तो सिंपली अ गरीब बंदा कैन नॉट अफोर्ड टू गो ओवर देयर, बेशक उसकी प्राइस कितनी भी आप लो कर दें क्योंकि अल्टीमेटली उसने प्राइस रखनी ही है. इस पूरी सिचुएशन के अंदर गरीब बंदा उस पूरी आर्ट को एक्सेस वगैरह नहीं कर सकता. ए ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आर्ट जो है और स्पेशली जो कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्ट है वो एक कंपेटिटिव कमोडिटी नहीं है, जिसका मतलब यह है कि यूजुअली मार्केट्स में, कैपिटलिस्ट मार्केट्स में ये होता है कि एक ही गुड होता है, उसको 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं और वो क्वालिटी और प्राइस पे कंपीट कर रही होती हैं. कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्ट के साथ मसला यह है कि वो जिस प्राइवेट ओनरशिप के पास होगी उसके साथ का कंपेटिटिव आर्ट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्ट है. इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो बंदा उस सिग्निफिकेंट आर्ट को ओन करेगा वो वर्चुअली एक मोनोपोली को चला रहा होगा क्योंकि उसके कंपीटिंग गुड प्रोड्यूस नहीं हो सकता बिकॉज कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्ट इज नॉट ए कमोडिटी, ए कंपेटिटिव कमोडिटी उस तरीके से. तो हमें लगता है कि जब इनके पास मोनोपोली होती है तो नेसेसरीली दे हैव द एबिलिटी टू रेज द प्राइसेस बहुत ज्यादा. इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमें लगता है प्राइसेस और भी बढ़ती हैं. थर्डली, हमें लगता है कि इस कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्ट की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है, लोगों की एसोसिएशंस वगैरह होती हैं और इंटरेस्ट वगैरह होता है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और डिमांड की वजह से भी प्राइस इंक्रीज होती है. चौथी सतह के ऊपर हमें लगता है कि मोस्टली इन लोगों के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो खुद ही रिच एलीट पीपल होते बायस भी होता है बीइंग रिच क्योंकि इन्होंने अपनी आर्ट को उसी कंज्यूमर बेस के अंदर ही चलाना है और वहीं से सोशल कैपिटल अट्रैक्ट करना है. गरीबों को दिखा के आपको सोशल कैपिटल वगैरह नहीं मिलता, आप अमीरों को इनवाइट वगैरह करते हो. इस पूरी सिचुएशन के अंदर नेसेसरीली प्राइवेटाइजेशन नंबर 1 कंट्रोल देती है एक प्राइवेट ओनर को कि वो एग्जीबिशन करे ना करे. बट सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट्स नॉट अ कमोडिटी गुड वगैरह और वर्चुअल मोनोपोली होती है तो इसकी वजह से प्राइसेस नेसेसरीली हाई होती है. तो हमने पहला लिंक प्रूव कर दिया और उनका सारा आर्ग्यूमेंट कि किस तरीके से वो प्रॉफिट गेन करना चाहेंगे बाय डिस्प्लेइंग मोर एंड मोर ऑन अ कंपैरेटिव. हमें लगता है कि इनके वर्ल्ड के अंदर फार ग्रेटर लैक ऑफ एक्सेस है. हमारी दुनिया के अंदर स्टेट ऑलरेडी हैज म्यूजियम्स जो कि पब्लिक म्यूजियम्स हैं, हम उनके अंदर ये चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं. नंबर 1. बट नंबर 2, हम स्टेट के ऊपर मजीद प्रेशर डाल सकते हैं और उसके ऊपर भी मैं आता हूं कि क्यों गवर्नमेंट ज्यादा हमारे वर्ल्ड में अकाउंटेबल ठहराई जाएंगी. कमिंग टू द सेकंड इशू ऑफ दिस डिबेट, आई थिंक दिस इज सेकंड कंट्रीब्यूशन आई हैव. क्यों गवर्नमेंट्स, बुरी से बुरी गवर्नमेंट्स भी बेटर अकाउंटेबल है एज कंपेयर टू प्राइवेट ओनरशिप.
नंबर 1, आप प्राइवेट ओनर को ये नहीं कह सकते कि तुमने इस आर्ट को इस तरह कंट्रोल करना है या इस तरह से प्रिजर्व करना है। और अगर वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर अगर आपके रिच वाइट बंदे की भी अपनी बाइसेस होंगी तो उसको आप अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो उसकी अपनी कमोडिटी है एज अपोज टू अ स्टेट, नंबर 1। बट सेकंड, वी बिलीव दैट स्टेट्स हैव ऑफ्टन हैव वोटर इंसेंटिव्स वगैरह, जिसकी वजह से उनको उनके ऊपर क्रिटिक वगैरह होती है और वो उनको वोट लेने होते हैं लोगों से। तो एक वोटिंग इशू ये भी हो सकता है कि यार आपने कितना हद तक हमारा कल्चरल प्रिजर्व किया है आर्ट को। बट सेकंड, हमें लगता है कि मीडिया वगैरह काफी ज्यादा काम करते हैं जब आप किसी आर्ट को फोर्सफुली आप उसको नीचे लेके जा रहे होते हो की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा मुमकिन है। अगेन प्राइवेट मॉडल के अंदर वो मुमकिन नहीं है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ऑफ्टन टाइम्स इन मीडिया कॉर्पोरेशंस हैव देयर सब्सिडरी न्यूज़ चैनल्स एज वेल टू प्रोड्यूस अ काउंटर नैरेटिव, बट सेकंडली वो खुद एट द एंड ऑफ द डे वो प्राइवेट ओनर ही होते हैं। थर्डली हम बिलीव करते हैं कि सोशल मीडिया की आज की दुनिया के अंदर स्टेट्स के ऊपर काफी ज्यादा के ऊपर बैकलैश और प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थली, और दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर स्टेट्स को जनरली के साथ ये नैरेटिव अटैच होता है कि उन्होंने हिस्ट्री को प्रिजर्व करना है, लोग पहले से क्रिटिसाइज करते हैं स्टेट्स को कि उन्होंने फलानी इंपॉर्टेंट चीज को प्रिजर्व नहीं किया, उन्होंने शाही किले को प्रिजर्व नहीं किया, बादशाही किले को नहीं किया, वगैरह वगैरह। इस पूरी सिचुएशन के साथ स्टेट की एक एक्सपेक्टेशन लोगों के अंदर क्रिएट हुई है कि स्टेट इज द एक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? हेंस जब प्रोटेस्ट वगैरह होंगे इन आर्ट की डिटोरिएशन वगैरह को, तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। Also, it is also important to understand the framing of this debate. कि क्यों harsh, bad, autocratic regimes are not a part of this debate? क्योंकि ये debate एक ऐसे paradigm में exist कर रही है जहां पे states के पास ये culturally significant art मौजूद है और अब वो उसको privatize करने जा रहे हैं क्योंकि somehow वो minorities के cultures को whitewash करना चाहते हैं। That is an additional point कि हमें लगता है कि इनके मॉडल के अंदर state easily बाहर के लोगों को बेच सकती है, and this is an important extension कि अगर state को अगर आप स्टेट के अंदर प्राइवेटाइजेशन बैन है लेट्स से, तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर स्टेट नहीं दिखा रही है, एक्सेस रोक रही है, तो प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है और जितने मैकेनिज्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको बताते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट लीगलाइज हो जाती है, स्टेट कैन इजीली सेल इट टू समबडी फ्रॉम आउटसाइड, जिसका मतलब यह है कि अब ऑन अ कंपैरेटिव इस आर्ट की एक्सेस और भी कम हो जाएगी इन लोगों के लिए। कमिंग टुवर्ड्स द आइडेंटिटी पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस, के आइडेंटिटी किस तरीके से व्हाइट वॉश होती है। हमें लगता है कि आइडेंटिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्चरली सिग्निफिकेंट आर्ट, अनलाइक द स्टेट लिटरेचर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, और it produces a visceral impact on these people कि हमारी स्ट्रगल ये है। जब आप एक अफ्रीकन पीस ऑफ आर्ट देखते हैं जिसके अंदर ऑपरेशन वगैरह की चीजें होती हैं, आपको रिमाइंड कराता है कि वो स्लेवरी हुई थी हमारे साथ, ये कॉलोनियलिज्म हमारे साथ हुआ था। जब वो तमाम जो राइस से बनी हुई आर्ट्स आप ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को दिखाते हो जो कि इनके एंसेस्टर्स ने अपने ड्रेडलॉक्स में छुपाए हुए थे जब वो बेचे जा रहे थे, तो उनसे जो आर्ट बनी हुई है हमें लगता है वो उनको रिमाइंड कराती है और सिस्टम के खिलाफ उनको पोलिटिसाइज करती है कि वी हैव टू स्टे एक्टिव फॉर दिस सिस्टम, राइट? अंडरस्टैंड कि छोटा सा कंपैरेटिव है यार कि हमारे मॉडल के अंदर वर्स्ट से वर्स्ट स्टेट को भी अकाउंटेबल ठहराना इजी है, इनके मॉडल के अंदर प्राइवेट ओनर को आप उस तरीके से अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते और किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन एक्सेस को रोकती है। ग्रोस इंपैक्ट ये क्रिएट होता है कि माइनॉरिटीज की एक्सेस टू देयर कल्चर खत्म हो जाती है। फॉर ऑल ऑफ दिस रीजंस वी हैव क्लियरली एंगेज्ड in far more deep manner. I thank the Deputy Prime Minister for that fine speech and would invite the Deputy Leader of the Opposition to end the debate for the opening half. Hear, hear. Adjudicator, I had a request कि अगर कोई screen share कर सकता है timer की, तो that would be very much comfortable. I don't have a problem with that. The problem is that would impact the recording, so we can't. Apologies. Okay, no problem. Just keep an eye on the chat. I'll keep giving the time signals. Okay. Starting in 3,
2-1 मोसेस मुनसिफ की इजाजत से। मुनसिफ, हमें आज इस डिबेट के अंदर ये लगता है कि आज ये जिन चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जैसे एक्सेस टू आर्ट और आइडेंटिटी का आर्ट से रिलेटेड होना और कैसे आपकी आइडेंटिटी फोर्स होती है, अगर आज हम आपको ये प्रूव करवा कर चले जाते हैं कि ये तमाम चीजें हमारे मॉडल के अंदर बेटर अचीव हो रही हैं, तो हम ये समझते हैं कि ओजी के ऊपर हम जीत जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम सीधा सीधा आइडियाज की तरफ आते हैं जो उनके दूसरे स्पीकर देकर जाते हैं। वो आज हमें ये पहली सतह पर बताते हैं कि देखिए आर्ट पहुंच नहीं पाएगा। उसके अंदर पहला वो लाइन ऑफ एनालिसिस देते हैं कि आर्ट महंगा होता है। वो कहते हैं कंपटीशन नहीं होता। हमारा इसके ऊपर रिस्पॉन्स ये है कि ये एक झूठ के ऊपर मबनी बात है। उसकी क्या वजह? क्योंकि आज ऑपोजिशन एक ऐसे मॉडल की बात कर रही है जिसके अंदर प्राइवेट ऑनरशिप भी है आर्ट की और पब्लिक ऑनरशिप भी है आर्ट की। हम ये समझते हैं कि पब्लिक म्यूजियम और प्राइवेट म्यूजियम किसी भी एक शहर के अंदर मौजूद होंगे। उनके दरमियान का जो कंपटीशन है वो हमें लगता है कि एक सब्सटेंशियल कंपटीशन है, जो कि बुनियादी तौर पर उस प्राइवेट ऑनर को अर्ज करेगा कि वो अपने टिकटों की प्राइस इतनी रखे ताकि अवाम पब्लिक म्यूजियम के बजाय उसके म्यूजियम के अंदर भी आए। तो कंपटीशन वाली बात इनकी यहाँ टूट गई। इनका दूसरा जो मसला था कि आर्ट क्यों नहीं पहुंच पाएगा, उन्होंने कहा कि कॉस्मोपॉलिटन शहरों में होता है, लोग आ नहीं पाएंगे। हम आपको एक पूरा एनालिसिस देकर जाते हैं इस बात के ऊपर कि प्राइवेट ओनर्स आर्ट खरीदते क्यों है इतना महंगा। उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो वो अपर क्लास का बंदा इनके अपनी कैरेक्टराइजेशन के मुताबिक वो खरीद रहा होगा। इनके मॉडल के अंदर का अपर क्लास का एक बंदा आर्ट इसलिए खरीदता है, नंबर एक, ताकि वो अपना सोशल कैपिटल बढ़ाना चाहता है कि देखो मैं आर्ट का पैटर्न हूँ, मैं आर्ट खरीदता हूँ, उसको प्रिजर्व करता हूँ ताकि लोगों के अंदर मेरी रेपुटेशन बढ़े। नंबर दो, उसकी कैपिटलिस्ट इंसेंटिव है, वो प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। हम ये समझते हैं कि अगर वो बंदा सोशल कैपिटल के लिए आर्ट खरीद रहा है तो उसका एक इंसेंटिव जुड़ा हुआ है इस बात के साथ कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस आर्ट को देखें ताकि उसकी रेपुटेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चनाचे हमें ये लगता है उसके पास एक एक्टिव इंसेंटिव मौजूद है कि वो इस आर्ट की एक्सेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। हेंस वो एक ऐसी जगह के ऊपर आर्ट मुनाकिद करवाएगा जहां ज्यादा लोग आ सके और टिकटों की प्राइस भी कम रखेगा। तो उनका दूसरा लिंक भी टूट गया कि ये बात खड़ी नहीं होती वहां के अंदर कि आर्ट पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि कंपटीशन नहीं है और फुला नहीं है। इनकी दूसरी बात क्या थी? इनकी दूसरी बात ये थी कि स्टेट अच्छा प्रिजर्व करेगी। हमने इनसे पूछा क्यों? इन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। आज हमें सबसे बड़ा इख्तिलाफ इसी चीज के साथ है। मोसेस मुनसिफ इनके मॉडल के अंदर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मिनॉरिटीज का आर्ट है और आप उसे मेजॉरिटी के हाथ दे रहे हैं, आप उसे पॉपुलर मीडिया के हाथ दे रहे हैं। इनका लिटरली जो अकाउंटेबिलिटी का जरिया था वो पॉपुलर मीडिया था। हम ये समझते हैं कि आज हमें इससे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है क्योंकि अक्सर होता यह है कि आपकी मेजॉरिटीज उन मिनॉरिटीज की स्ट्रगल को ऑन नहीं करना चाहती, उनको नहीं देखना चाहती। हम ये समझते हैं कि इस तरह से आप उन मिनॉरिटीज का जो आर्ट वर्क था, उनके जो आर्टिफैक्ट्स थे, वो उस पॉपुलर नैरेटिव के हाथों के अंदर दे रहे हैं। हमें इससे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। दूसरी सतह के ऊपर इनका पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वाला सारा मैकेनिज्म की स्टेट अच्छा प्रिजर्व करेगी। हम ये समझते हैं कि ये खड़ा ही नहीं होता क्योंकि ये असल इशू को टैकल ही नहीं करता। असल इशू क्या है? आज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। हम ये समझते हैं कि ना उनके पास इतने वसाइल हैं, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो आर्ट वर्क को अच्छे आर्टिस्ट और प्रेजर्वेशन मेथड से गुजार कर उनको अच्छी तरह ना सिर्फ एग्जिबिट कर सके बल्कि उनकी मैनेजमेंट भी कर सके। आज आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जाएं, वहां पर म्यूजियम्स की हालत देखें, आपको पता लगेगा कि कैसे बुद्धा के जो मुजस्मे थे उनको पॉलिश तक नहीं किया गया कि अवाम उन्हें सही तरह से देख सकें। हम ये समझते हैं कि असल इशू को यहाँ पर भी ये टैकल नहीं करके जाते। इनके मिनॉरिटीज वाली बात के देखें जी, वो मिनॉरिटीज का आर्ट जो है ना वल्नरेबल हो रहा है। मैं आपको अपना एक पूरा पॉजिटिव आर्गुमेंट इसके ऊपर दूंगा जिससे इनका ये वाला केस डायरेक्टली रिबट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारी पॉजिटिव एक्सटेंशंस की तरफ। आज हमने आपको क्या बताया? पहली सतह के ऊपर हमने आपको ये बताया कि एक्सेस वाली जो बात थी ना, हमारे मॉडल के अंदर एक्सेस ज्यादा हो रही है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपकी रियासत अक्सर औकात ऐसा आर्ट नहीं दिखाना चाहती जो कि पॉपुलर नैरेटिव के खिलाफ है या जो आपकी रियासत के नजरिए के खिलाफ है। हम ये समझते हैं कि प्राइवेट ऑनरशिप जब होती है तो प्राइवेट ऑनर्स के पास ये इंसेंटिव होता है कि वो ऐसा आर्ट दिखाएं जो पहले नहीं दिखाया जा रहा, जो कि बुनियादी तौर पर मुआशरे के अंदर एक नया रुझान लेकर आए। हम ये समझते हैं कि इस तरह का आर्ट हमारे मॉडल के अंदर उसकी एक्सेस ज्यादा आ रही है, तो ये वाला इशू हमारी साइड पे। दूसरी सतह के ऊपर हमने आपको बताया कि कैसे स्टेट्स के पास इतने वसाइल नहीं होते, इतनी विल नहीं होती कि वो आर्ट को प्रिजर्व करके उसको एग्जिबिट कर सके। प्राइवेट ऑनर्स के पास इंसेंटिव्स मौजूद हैं कि वो ऐसा कर सके, हेंस बेटर एक्सेस हमारे मॉडल के अंदर। मैं आपको क्या बताऊंगा? मेरा पहला आर्गुमेंट, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इंडिजिनस ग्रुप्स और मिनॉरिटी ग्रुप्स का आर्ट
आप प्राइवेट ऑनरशिप खत्म करके उनसे उनकी आइडेंटिटी को छीन रहे हैं। इनका वो आइडेंटिटी वाला सारा जो मुकदमा था, हम ये समझते हैं कि वाकई आइडेंटिटी बड़ी जरूरी है, और अगर आप निजी मलकियत के ऊपर पाबंदी लगाते हैं तो आप उन ग्रुप से उनकी आइडेंटिटी छीन रहे होते हैं। वो किस तरह से? हम ये समझते हैं कि अक्सर औकात जो अकलियतें होती हैं, जो इंडिजिनस ग्रुप्स होते हैं आपके ममालिक के अंदर, उनकी एक तारीख एसोसिएटेड होती है, कुछ आर्टिफैक्ट्स के साथ, कुछ आर्ट पीसेस के साथ। हम ये समझते हैं कि उनकी बरादरी के अंदर वो आर्ट रहता है, उनके ट्राइबल मुआशरे के अंदर उनके अंदर एक रिवायत एग्जिस्ट करती है कि ये हमारा आर्ट था, ये इस मेजॉरिटी का आर्ट नहीं जो सोसाइटी के अंदर रहती है, ये सिर्फ हमारा आर्ट था, ये हमारी स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा से हमारे बाप दादों के पास था, ये हमारे पास रहना चाहिए। हम ये समझते हैं कि जब आप इस आर्ट को उनसे छीन कर पब्लिक म्यूजियम्स के अंदर जाकर रख देते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि वो जो माइनॉरिटी थी, वो जो इंडिजिनस ग्रुप्स था जिसकी एक तारीख रिलेटेड थी कि आर्ट हमारा है, हमारे बाप दादों का है, हम ये समझते हैं कि आप उसको थ्रेटन फील करवाते हैं। नंबर 2, आप उस आर्ट को मेजॉरिटी को दे देते हैं, या जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके उस सोसाइटी के अंदर राइज है, हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई बुरा है। उन इंडिजिनस ग्रुप्स का आर्ट उनके पास रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इसको देखना होगा। कोलोनाइजेशन के अंदर आपकी रियासतों ने क्या किया? आपकी रियासतों ने अफ्रीका और अमेरिका की जो मकामी कम्युनिटीज थी उनके आर्टिफैक्ट्स और आर्ट्स छीन कर अपने पब्लिक म्यूजियम्स भर लिए ताकि उनकी कॉस्मोपोलिटन अवाम वहां से लुत्फानंदोज हो सके। हम ये समझते हैं कि अगर आज उन मिनॉरिटी इंडिजिनस ग्रुप्स को अपनी स्ट्रगल्स को वैलिडेट करना है तो उनका आर्ट उनके पास ही रहना चाहिए, उनकी प्राइवेट ऑनरशिप के अंदर। नंबर 2, हम ये समझते हैं कि प्राइवेट ऑनरशिप से अवाम का रुझान इस फील्ड के अंदर ज्यादा आता है। वो किस तरह से? आज आपका मुआशरा मुख्तलिफ इंडिविजुअल से मिलकर बना है, हर इंडिविजुअल का कुछ टेस्ट होता है मोसेस मुंसिफ आर्ट के हवाले से। आप हेलेनिस्टिक आर्ट को पसंद करते हैं, आप कुछ टाइप्स ऑफ आर्ट को पसंद करते हैं। हम ये समझते हैं कि निजी मलकियत के अंदर आज होता क्या है कि जो कलेक्टर होता है वो अपने टेस्ट के एतबार से उस आर्ट को प्रिजर्व करता है और फिर एग्जिबिट करता है, जबकि ऑन द कंपैरेटिव पब्लिक म्यूजियम्स के अंदर ऑन द जनरल आर्ट दिखाया जाता है। हम ये समझते हैं कि लिहाजा निजी मलकियत का आर्ट उसके अंदर ज्यादा चांसेस मौजूद हैं कि वो आपके टेस्ट के मुताबिक एक आर्ट कलेक्शन आपको प्रेजेंट करे। हेंस अगर एक बिलियनियर हेलेनिस्टिक आर्ट दिखा रहा है अपनी प्राइवेट म्यूजियम के अंदर, तो हम ये समझते हैं कि वो लोग जिनका उसके साथ टेस्ट रिलेटेड था वो उसके म्यूजियम के अंदर देखने जाएंगे। हेंस इससे क्या होगा? लोगों का रुझान बढ़ेगा, वो अपनी टेस्ट का आर्ट देख सकेंगे। दो इम्पैक्ट्स हमें होते नजर आएंगे, आर्ट की पैट्रोनेज में इजाफा होगा, आर्ट की एक्सेस में इजाफा होगा। इनके दोनों इश्यूज कि आइडेंटिटीज का आर्ट्स और आइडेंटिटी कैसे इन्फोर्स होती है हमारे मॉडल के अंदर, एक्सेस बेहतर किसके अंदर है? हमारे मॉडल के अंदर। बेहतर एनालिसिस किसका है? हमारे मॉडल के अंदर। बेहतर एंगेजमेंट किसके है? हमारे मॉडल के अंदर। इन तमाम चीजों की बुनियाद के ऊपर इफ्तिताही हिस्सा। I thank the DLO for that fine speech and again urge the speakers to please keep an eye on either their clock or on the chat. Both of the opposition speakers went way over 7:30. I promise you I stopped writing after 7:15, so you're not helping your case. With that said, I thank all of the speakers for the opening half and would invite the member of the government to open the debate for the back half. Hear, hear. ओके बस कोई कंफर्म कर दे मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल। ओके स्टार्टिंग माय स्पीच पीओआई चैट में बट 5th मिनट पे आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। या स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। ओपनिंग ऑपोजिशन जब ये आके कंसीड कर देती है कि इंडिजिनस लोगों को और माइनॉरिटीज के लिए जिनकी आइडेंटिटी ऑलरेडी काफी तरीकों से स्टेट ने हिस्टोरिकली कर्व की हुई है, उनके लिए ये आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनली सिग्निफिकेंट है। हमें लगता है वो काफी हद तक ये भी चीज कंसीड करती है कि फिर आर्ट एक सिंगुलर एंटिटी के पास ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, एंड किस तरह से उस आर्ट की इम्पोर्टेंस एक इंडिविजुअल और एक प्राइवेट ओनरशिप से एक्सटेंड कर जाती है और एक पूरी कम्युनिटी और एक पूरी पॉपुलेशन के लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है। हम अपनी ओपनिंग से डिस्टिंक्ट कैसे होंगे? हम अपनी ओपनिंग से डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि हम ना सिर्फ लाइक एक क्लेम करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम आपको एक्चुअली बताएंगे किस तरह से इस एक्सेसिबिलिटी के टेंजिबल फायदे हैं ऑन आइडेंटिटी, किस तरह से ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है विद इन लाइक करंट एक कल्चरल सिनेरियो और ग्लोबल सिनेरियो। और हम आपको बात करेंगे किस तरह ये अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ विद इन योर स्टेट ज्यादा हो सकती है बट रादर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में किस
तरह से आप दूसरी कंट्रीज को भी अकाउंटेबल रख सकते हो। पहली बात थोड़ी इंगेजमेंट पे आ जाती है। इनका काफी बड़ा क्लेम ये था कि प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट्स इन आर्ट वर्क को प्रिजर्व नहीं करते एक्सेट्रा। हमें नहीं लगता है कि ये काफी हद तक बात सच है। पब्लिक गैलरीज और गवर्नमेंट ओन्ड आर्ट अक्सर परमानेंट कलेक्शंस का पार्ट होते हैं। यानी लाहौर म्यूजियम में जो 20 साल पहले चीजें लगी हुई थी वो आज भी लगी होंगी, जिसका मतलब ये है कि जब ये एक एक्सट्रीम नीड होती है कि हाँ ये आर्ट अभी आगे भी 100 सालों तक हमने रखना है अपनी गैलरी के अंदर, तब ज्यादा प्रेशर होता है ज्यादा प्रेशर होता है उस गैलरी पे या ओनर्स पे कि वो उस चीज को प्रिजर्व करें। हमें ये भी लगता है कि स्टेट के पास पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन के, जो ठीक है काफी कंट्रीज में थोड़े से ज्यादा एफिशिएंट होंगे, थोड़े से कम होंगे, बट हमें लगता है एज अ होल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इंसेंटिव होता है कि वो इस चीज को वो उस आर्ट वर्क को प्रिजर्व करें, और जो एक्सपर्टीज जरूरी होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए वो भी हमें लगता है स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के पास स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स जो कि खुद ओन करते हैं उनके पास खुद नहीं होती, बट रादर आपको एक्सटर्नल टीम्स वगैरह चाहिए होती हैं। हमें क्यों लगता है कि प्राइवेट आर्ट लाइक इवन इफ कंपटीशन का एलिमेंट आ जाता है क्यों फिर भी इनएक्सेसिबल होगा। बोथ ओपनिंग बेंचेस ये बात कंसीड कर देती हैं कि प्राइवेट आर्ट इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस खरीदा जाएगा या ओन किया जाएगा बाय वेरी रिच इंडिविजुअल्स। ठीक है, हमें इस कैरेक्टराइजेशन पे थोड़ी और बात करते हैं। हमें ये भी लगता है कि ये एलीट लोग जो हैं, जो ये रिच लोग हैं, या तो लाइक फ्रॉम वेरी स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग करते हैं या फ्रॉम वेरी वेरी रिच फैमिलीज। यानी आपको लाइक मोस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड या तो लाइक इन द अरब वर्ल्ड मिलता है ओन्ड बाय वेरी वेरी रिच पीपल, या फिर आपको लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, यूरोप में भी वेरी वेरी रिच पीपल के हाथों में मिलते हैं। हमें लगता है कि जो सोशल कैपिटल की बात कर रहे हैं कि वो क्योंकि एक सोशल कैपिटल भी चाहते हैं वो इस आर्ट को पब्लिकली अवेलेबल करेंगे, हमें नहीं लगता है कैरेक्टराइजेशन ट्रू है। बिकॉज अगर आप कंसीड करते हैं कि ये लोग इनहेरेंटली एक पर्टिकुलर सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमें लगता है कि वो उन लोगों की सोशल वैलिडेशन बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा प्रेफर करेंगे जो उनके अपने सोशल क्लास से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि आर्ट लोग मोस्टली प्रिटेंशियस होते हैं, वो एक आर्ट सीन के अंदर जो उनके फेलो कॉलीग्स वगैरह होते हैं या फिर उस आर्ट सीन के अंदर अदर लाइक रिच आर्ट कलेक्टर्स जो होते हैं उनकी वैलिडेशन प्रेफर करेंगे। जिसका मतलब ये है कि प्राइवेट एग्जीबिशंस वगैरह हमेशा से ज्यादा एक्सक्लूसिविटी का शिकार होंगे एज कम्पेयर विद पब्लिक एग्जीबिशंस। बट लाइक इसके अलावा भी हमें क्यों लगता है कि ये इन रिच पीपल का ओन करना वैसे लाइक एक अलग रीजन की वजह से बुरा है। हमें लगता है अक्सर औकात आप उस आर्ट की बात कर रहे होते हो, ओपनिंग हाफ बिल्डिंग्स की बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि मोशन काफी हद तक उस आर्ट के बारे में भी बात करता है जो जिसको फोर्सफुली फोर्सफुली ट्रांसफर किया गया है, जिस आर्ट में किसी हद तक एक मोबिलिटी आप इधर उधर लाइक ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, क्योंकि लाइक प्राइवेट ओनरशिप उसी तरह आती है थ्रू ऑक्शंस, थ्रू सेलिंग वगैरह। हमें लगता है कि ये एलीट लोग क्योंकि सर्टेन लाइक जियोग्राफिकल रीजन्स पे बिलोंग करते हैं, वो जिस तरह का आर्ट खरीदते हैं वो दूसरी दुनिया के दूसरे पार्ट की दूसरी कम्युनिटीज में के अंदर ओरिजिनेट हुआ होता है। हमें लगता है कि काफी हद तक क्लैश करती है ये बात ओपनिंग ऑपोजिशन से, जब वो बात कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में किस तरह जस्टिस जरूरी होता है। हमें लगता है कि काफी हद तक जो एडवोकेसी ग्रुप्स होते हैं पोस्ट कॉलोनियल नेशंस के, जो काफी इस चीज पे बिलीव करते हैं कि हमारा जो इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे वो ब्रिटिश एम्पायर को नहीं चोरी करने चाहिए थे, हमें लगता है कि वो हेल्पलेस हैं इन सिचुएशंस जब प्राइवेट ओनरशिप होती है। क्यों? क्योंकि एक आपके पास ज्यादा आपके पास ज्यादा लीगल रिपरकशंस होते हैं अगर आप उनकी ओनरशिप को चैलेंज करना चाहो। बी दे आर एक्सट्रीमली रिच, दे हैव लाइक फैंसी लॉयर्स, दे हैव नो लाइक उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपकी एडवोकेसी ग्रुप्स को कोई जवाब दें। बट तीसरी चीज, आपके पास ट्रैक रखना भी मुश्किल हो जाता है। एक जनरली हमें लगता है कि इन अ वर्ल्ड जहां पे स्टेट ओन करती है सारा आर्ट, स्टेट्स एक दूसरे को प्रेशराइज ज्यादा बेहतर तरीके से कलेक्टिवली कर सकती हैं। एंड ये उन स्टेट्स की बात कर रही है जो काफी हद तक एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, ब्रिटेन ने की है, जिसने भी की है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टेटस को में ऑलरेडी प्रेशर एग्जिस्ट करता है कि इन पोस्ट कॉलोनाइजर कंट्रीज को कि किसी ना किसी हद तक किसी ना किसी तरह रेपरेशंस दें उन ममालिक को जिनके साथ उन्होंने ये लाइक हिस्टोरिकल इंजस्टिस किए हैं। उस प्रेशर में आके आप बेहतर और क्योंकि ग्लोबल स्फीयर में प्रेशर भी होता है कि आप डिप्लोमेसी से काम लो, आप काफी हद तक अपना फेस सेव करो जितना हद तक हो सकता है। हाँ,
इतना प्रेशर नहीं होता कि कोई एक्चुअल लाइक कॉन्क्रीट कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह करो, बट क्योंकि एक सेफ फेस का वैल्यू होती है, हमें लगता है कंट्रीज उस हद तक एक दूसरे के आगे अकाउंटेबल ठहर सकती हैं और इन आर्टिफैक्ट्स को रिटर्न कर सकती हैं अगर तो वो स्टेट ओन्ड हो। हमें नहीं लगता आप उस तरह का प्रेशर इंडिविजुअल ओनर्स पे डाल सकते हो। इसके अलावा हमें क्यों लगता है कि लाइक ये चीज इसके काफी फायदे होंगे अगर आप एक चीज एक्नॉलेज कर देते हो कि क्योंकि डिप्लोमेसी, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आप रहते हो, हमें ये भी लगता है कि उतनी ही नीड है उतनी नीड है एक लाइक पब्लिक एक सिंबॉलिक तरीके से इस चीज की, क्योंकि हमें लगता है कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे होते हो। अगर आप ये रिटर्न कर देते हो आर्टिफैक्ट्स, आप एक पब्लिक एक्नॉलेजमेंट दे रहे होते हो कि ये चीज आपकी ओन नहीं थी, आप एक कम्युनिटी की ओन थी। हमें लगता है कम्युनिटी के लिए सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एज एन आर्टिस्ट यहाँ आपको आके बता रही हूँ कि शायद वो आर्ट उतना सोशल जस्टिस में काम नहीं, लाइक आर्ट की उतनी वैल्यू प्रैक्टिकली उतनी नहीं होती है जितनी वो क्लेम करने की कोशिश करी, उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है। और हमें लगता है जो आप उस कम्युनिटी को एम्पावर करते हो, जब उनके हाथ में वो आर्टिफैक्ट आ जाता है, या जब आप उनको कह देते हो कि ये आपका है और किसी और इंडिविजुअल का नहीं है, स्पेशली इंडिविजुअल जो आपसे हद से ज्यादा प्रिविलेज है, हमें लगता है आप काफी हद तक उनको एम्पावर कर रहे होते हो। हमने आपको ज्यादा सिग्निफिकेंट आर्गुमेंट बताई है कि क्यों प्राइवेट ओनरशिप को बैन करने से ज्यादा फायदे पहुंचा सकते हैं, क्यों ये कम्युनिटी सर्टेन कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वोट सीजी। I thank the member of government for that fine speech and would invite the member of opposition to continue the debate in the back half. You're here. Can I be given only 30 seconds? Sure. MO. Should I start? Yes, you should. सबसे पहली सतह के ऊपर तो आज हम सीजी और ओजी दोनों की केसेस के अंदर जो आइडेंटिटी की प्रिजर्वेशन है उससे हमें मसला है। सबसे पहली सतह के ऊपर हम ये समझते हैं कि आज किस तरह से क्लोजिंग गवर्नमेंट अपने केस के अंदर पूरे के अंदर किस तरह से कहकर जाती है कि स्टेट के पास हेरिटेज प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। स्टेट्स के पास अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो स्टेट्स बहुत बेहतर तरीके से आइडेंटिटी लोगों की प्रिजर्व कर सकती हैं। हमें इस बात से पहली सतह के ऊपर मसला है क्योंकि इस मिथ को अभी ब्रेक करने की जरूरत है हमारे लिए सबसे पहले कि किस तरह से पावर और जो स्टेट्स के पास पावर और वेल्थ दोनों होती हैं वो कंपेयर टू प्राइवेट आर्टिस्ट, जितने भी चाहे वो अमीर हो और प्राइवेट आर्टिस्ट को जितनी भी पेट्रोनेज हासिल हो, अमीर लोगों की तरफ से जिनकी ये बात कर रहे हैं, रिच पीपल की तरफ से जिनकी लीड्स की बात कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से जितनी भी किसी आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा पेट्रोनेज भी मिल जाए, उनकी तरफ से बहुत ज्यादा पैसा भी लगाया जाए आर्ट के ऊपर, तो वो स्टिल मैच नहीं करती जो स्टेट के पास अपनी पावर होती है और स्टेट के पास इनहेरेंट जो अपनी वेल्थ होती है उसके बराबर। हमें लगता है कि सबसे पहली सतह के ऊपर तो दोनों ओपनिंग गवर्नमेंट और क्लोजिंग गवर्नमेंट के केस के अंदर सबसे बड़ा ये मसला था कि इन्होंने किस तरह से उसका एक इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं किया, स्टेट की पावर के साथ अपना किस तरह से एक आर्टिस्ट, एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट किस तरह से कम्पीट नहीं कर सकता, उसकी इनेविटेबली वो हमेशा इंफीरियर रहेगा उस स्टेट की पेट्रोनेज से और स्टेट की अपनी प्रिजर्वेशन से। हमें लगता है कि सबसे पहली सतह के ऊपर तो इनको इस बुनियाद के ऊपर इनके पास ये बात इनकी कंप्लीट आर्गुमेंट एक नहीं बनकर हमारे सामने आ रहा था दोनों के अंदर। दूसरी सतह के ऊपर हम ये समझते हैं कि अभी क्लोजिंग गवर्नमेंट आपके सामने आई और इनकी तरफ से जो कि आकर बात की गई कि किस तरह से हम इस बात के ऊपर दोबारा अपने पॉजिटिव केस के अंदर भी बात करेंगे कि कॉलोनियलिज्म का क्या इसके अंदर किरदार है।
आखिर जो अभी फर्स्ट स्पीकर क्लोजिंग गवर्नमेंट की उन्होंने बात की कि किस तरह से अगर कॉलोनियल पावर्स आपके पास से प्राइवेट आर्टिस्ट के पास से आर्ट का कब्जा करेंगे तो आप किस तरह से उनका कुछ नहीं कर सकते, और अगर आर्ट स्टेट्स के पास होगा तो किस तरह से आपके पास लीगल मैकेनिज्म्स हैं एनफोर्स करवाने के लिए। हमें लगता है कि इनके ये बात बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि आज हमें लगता है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो हैं, और मैं ये दूसरी बार अपने पॉजिटिव केस के अंदर की भी ये बात करूंगा कि किस तरह से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स का भी कैरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है कॉलोनियल स्टेट्स के साथ। और इस वजह से क्या होता है कि जिन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स को आप उन गरीब आर्टिस्ट की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनके लीगल मैकेनिज्म्स को उन गरीब आर्टिस्ट की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि वो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स खुद ही खतरा हैं उन आर्टिस्ट के लिए जिनको वो अभी भी कॉलोनियल ताकतों को सर्व करने के लिए, इंपीरियल पावर्स को सर्व करने के लिए आज भी उन आर्टिस्ट के आर्ट की मदद नहीं करेंगी। उल्टा वो आज कॉलोनियलिज्म को डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। आपको हर जगह के ऊपर फेयर एंड लवली के एड्स नजर आते हैं, आपको हर जगह के ऊपर एक कॉलोनियल सिलेबस नजर आता है स्कूल्स के अंदर कॉलोनियल तरह का, आपको कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी नजर आती है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के अंदर। हमें लगता है कि ये सारे कॉलोनियल लीगल सिस्टम्स आपको नजर आते हैं। इन सारी बुनियादों के ऊपर जिन लीगल सिस्टम्स को आप आर्टिस्ट की गरीब जो छोटे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के अंदर जो आर्टिस्ट हैं उनकी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हमें लगता है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स खुद ही उनकी तरक्की के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। और आपकी वर्ल्ड के अंदर, आपके केस के अंदर कंपैरेटिवली वो आर्टिस्ट आज मजीद इस्तेसाल का शिकार होंगे। आज पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो हैं मजीद कॉलोनियल पावर्स को सर्व करने के लिए और उनको खुश करने के लिए इन आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं करेंगी, उल्टा इन आर्टिस्ट को उन्हीं पोस्ट कॉलोनियल रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की तरह दबाएंगी जो कि हमें पूरी पोस्ट कॉलोनियल रास्तों के अंदर नजर आती हैं। दूसरी सतह के ऊपर हम ये समझते हैं कि किस तरह से आज ये जो ओपनिंग गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिकली हमारे पास केस आया, उसके अंदर सबसे बड़ी जो डेफिशिएंसी थी वो आज उन मैकेनिज्म्स की थी जिन मैकेनिज्म्स के जरिए ये आर्ट को आम लोगों के लिए प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। हमें लगता है कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं इन्होंने बताया किस तरह से ओपनिंग गवर्नमेंट के पूरे केस को अगर मैं सम अप करूं तो इनके अंदर कोई लिंक नहीं हमें नजर आता सोशल चेंज और आपकी शनाख्त और आपकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो आप इस्तेमाल करेंगे प्राइवेट आर्ट के ऊपर पाबंदी लगाने के अमल को। हमें लगता है कि उसके अंदर कोई डायरेक्ट लिंक हमें नजर नहीं आया इनके पूरे केस के अंदर, और इस वजह से भी हमें लगता है कि इनके आर्गुमेंट्स जो थे वो काफी हद तक इनकम्प्लीट थे। और मैंने पहले भी आपको शुरू में बताया हमारे पास आज इस केस के अंदर क्या है। हमारे पास आज इस केस के अंदर अपनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए 3 एक्सटेंशंस हैं। मैं आपको एक एक करके सारी एक्सटेंशंस का पूरा वारंट दूंगा, एनालिसिस दूंगा, एग्जांपल्स दूंगा तारीखी तौर के ऊपर, सबसे पहली सतह के ऊपर। और ये चीज हमारी ओजी के केस के साथ भी टैकल करेगी इनहेरेंटली, क्योंकि हम ये समझते हैं पहला आर्गुमेंट हमारी पहली एक्सटेंशन इस मैच के अंदर ये है कि किस तरह से आर्ट की प्रमोशन पर प्राइवेट आर्ट के ऊपर पाबंदी लगाकर आप उसकी सब्सिडाइजेशन रोकेंगे। और इस वजह से जो रीजनल आर्ट है, जो रीजनल एलीट्स आर्ट प्रमोट करती आई हैं तारीख के अंदर, आप उस सारे आर्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें लगता है कि किस तरह से आपके पास आज बहुत सारे तारीखी तौर के ऊपर जगह देखें, और ओजी ऑब्वियसली ये तारीख नहीं टेक इनटू अकाउंट करना चाह रही, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा केस बनाया है जो कि अपनी नेचर के अंदर काफी ज्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड है, जिसकी इंटरप्रिटेशन जो है प्राइवेट आर्ट की। हमें लगता है कि आज जो इन्होंने बात की कि रीजन के अंदर किस तरह से आर्ट प्रमोट नहीं हो सकेगा, कॉस्मोपॉलिटन सेंटर्स के अंदर हमारे पास ये सारी एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, ये सारे काम होते हैं। आप अगर हिस्टोरिकली देखें इटालियन रेनेसां को आप देख लें कि किस तरह से फ्लोरेंस के अंदर और जो छोटी स्टेट्स थी उनके अंदर बहुत सारी एलीट्स ने आर्टिस्ट को, जो छोटे आर्टिस्ट थे सैंड्रो बोटिचेली की तरह के, उनको प्रमोट किया, लियोनार्डो डा विंची वगैरह को प्रमोट किया पैट्रोनेज देकर, और उस पैट्रोनेज ने उनको क्या फायदा दिया। आज हमें लगता है कि उन रीजन्स को ऊपर आने का मौका मिला, किसके मुकाबले के अंदर, रोम के मुकाबले के अंदर, जो कि एक उस वक्त का सबसे प्रिविलेज्ड तरीन जो स्टेट थी, प्रिविलेज्ड तरीन पावर की पर्पसी की, उसके खिलाफ उठने का। इसी फ्रेमवर्क के अंदर आप इंडिया के अंदर देख लें, आप कॉलोनियल इंडिया के अंदर देख लें, जो ब्रिटिश इंडिया था उसके अंदर आप देख लें कि किस तरह से बहुत सारे रीजनल रूलर्स ने, किस तरह से उन्होंने बहुत सारे छोटे आर्टिस्ट को प्रमोट किया, उनको पैट्रनेज दी, उनको खाना दिया, उनको रिहाइश दी, ये सारी चीजें दी, जिसकी वजह से वो एक मुगल पावर के खिलाफ एक उठकर सामने आए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास जो अफगान रीजन्स के अंदर या जो फारफ्लंग जो फ्रंटियर टेरिटरीज हैं उनके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट आपके सामने आते हैं, और उन आर्टिस्ट को किस तरह से पैट्रनेज हासिल हुई थी, ये सारी बात हम सब जानते हैं।
दूसरी सतह के ऊपर इस आर्गुमेंट के बाद कि किस तरह से रीजन्स की प्रमोशन के अंदर और रीजनल आर्ट की प्रमोशन के अंदर और कॉस्मोपॉलिटनिज्म की मोनोपोली टूटने के अंदर किस तरह से एक बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। दूसरी सतह के ऊपर हम ये समझते हैं कि आर्ट की ये डिबेट आर्ट की है बेसिकली। तो आपको आज ये बताना पड़ेगा कि म्यूजिकोलॉजी जो है, जो बेथोवन के आर्ट्स हैं, जो आपके पास बहुत सारी जो बेथोवन का म्यूजिक है उसके लिए कुछ ट्रिब्यूट्स बनते हैं, कुछ कंसर्ट्स बनते हैं, कुछ ऐसी चीजें बनती हैं जो कि उसको एक ट्रिब्यूट के तौर पर आते हैं, लेकिन वो खुद भी एक आर्ट होते हैं। मसलन आप बेथोवन को एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं, कंसर्ट करते हैं, एक म्यूजिक वीडियो लगाते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। अब आप ये बता दें कि ये खुद भी जो एक आर्ट है, इसको आप अगर ले लेंगे लोगों से, तो आज ये आर्ट खुद किस तरह से प्रमोट होएगा और ये जो आर्ट आप ले लेंगे लोगों से, दूसरी बार लोग किस तरह से इस आर्ट को रिप्रोड्यूस करेंगे। आपने एक आर्टिस्ट ने आज एक ट्रिब्यूट बनाया बेथोवन का, आपने उससे ले लिया, वो कंसर्ट दोबारा करना चाहता है, उसकी अपनी प्रोग्रेस के अंदर भी ये हैम्पर चीज करेगी और फिर ये हिस्ट्री को स्टैग्नेट करने के बराबर है कि आप जो ट्रिब्यूट्स बना रहे हैं लोग, जो रिक्रिएट कर रहे हैं आर्ट को, उन आर्टिस्ट को आप आज नहीं, उन आर्टिस्ट को भी आज रोक रहे हैं, उसी पुराने आर्ट को स्टेगनेट आप कर रहे हैं, उसकी तरक्की के अंदर उनका किरदार नहीं होगा। इस वजह से हम ये समझते हैं कि आज एक्सटेंशंस दो लाने की बुनियाद के ऊपर और ओजी और सीजी के साथ एंगेज करने की बुनियाद के ऊपर हम ये मैच जीतते हैं। क्लोजिंग ऑपरेशन। I thank the member of opposition for that fine speech and again implore the speakers to keep an eye on the time or on the chat. With that, I invite the government to end the debate for the gov bench. Hear. क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी माजरत। मुझे बस 1 सेकंड में स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है ताकि मैं टाइम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं। मुझे बस 1 सेकंड में। टाइमर 7 मिनट। Anam, please stop harassing me. Okay, मोहतरम मुंसफीन की इजाजत से। Whenever you're ready. हसन इजाज आज आके कहते हैं कि हम आपको 3 एक्सटेंशंस गिनवाएंगे, फिर आके 2 एक्सटेंशंस गिनवाते हैं और वो असल में एक एक्सटेंशन होती है। वो एक एक्सटेंशन क्या है, पहले उससे एंगेज कर लेता हूँ, फिर मैं अपनी ओपनिंग हाफ से एंगेज करूंगा और फिर मैं अपने आप को जरा सर्टिफाई करूंगा किस तरह हमारी बातें डिस्टिंक्ट थी, जिससे एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं की। एक गलती जो हसन इजाज पहले दोहरा चुके हैं। आगे कहते हैं कि हिस्टोरिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट बैच बहुत हद तक ना निगलेक्ट कर रही है। ठीक है, इसकी मिसाल क्या देते हैं कि पुराने कदीम वक्तों के अंदर इटली की मिसाल देख लें कि इटली की जो रेनेसांस वाला जो पीरियड था ना, वहाँ पे उन आर्टिस्ट को, उन गरीब लोकल आर्टिस्ट को जब उनकी गवर्नमेंट ने तब तरजीह दी थी, तो देखें आज उनके मुआशरे और कल्चर को कितना भरचार मिल गया था। आपकी सारी बातें एक स्फीयर में बिल्कुल दुरुस्त है, हम मानते हैं कि तब बहुत भरचार मिलता है, उससे आज का क्या ताल्लुक है और उनकी तब की इंपॉर्टेंस को आज एक प्राइवेट इंडिविजुअल के ओन करने का क्या फायदा होगा, उस आर्ट को, उस आर्टिस्टिक कल्चर को, उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को और इटली या उस रेनेसांस फेयर एज एन होल को, ये सब कुछ का जो लिंकेज, प्रोसेस, एनालिसिस और जो कंक्लूजन था ना, ये मिसिंग था आपकी स्पीच से। लेकिन अगर आप आगे वेब करती है तो आप अफसोस है हम उससे एंगेज तो कर नहीं सकते, वो आखिरी स्पीकर है। मिसाल देते हैं किस तरह वहाँ पे लियोनार्डो डी विंची ने मुख्तलिफ स्कल्पचर्स बनाए और इन सब चीजों की जो है ना वैल्यू आज बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी एक मिसाल हम भी देते हैं कि साल्वाडोर डाली जो बनाया, जो साल्वाडोर मुंडी जो एक आर्ट थी जो मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर की, जिसकी ऑक्शन प्राइस तकरीबन 480 मिलियन यूएस डॉलर्स लगी है, वो आज एक यूएई का शेख ओन करता है। तो इसमें कल्चरल क्रॉसेज का लिंक क्या है, इसका इटली को क्या फायदा कि एक शेख उसे आज ओन करता है और उसने अपने कमरे के बेड के ऊपर टांगा हुआ है। ये सब कुछ हमें समझ नहीं आता, इसके लिंकेज भी बहुत ज्यादा मिसिंग थे आज इनकी स्पीच से। दूसरी हमारे साथ एक गो सेक्शन देख जाते हैं किस तरह यार इनके साथ ना एक कल्चरल एट्रीब्यूशन और जो ट्रिब्यूट होता है वो बहुत जरूरी होता है। हमें नहीं पता ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस तरह, 200 हाथ के ऊपर एक किस तरह ये एक्सक्लूसिविटी जो आपके पास आती है ट्रिब्यूट की, वो प्राइवेटली ओन करने से ही आती है। इसकी मिसाल मैं आपको BBC वन की देता हूं कि BBC वन एक प्राइवेटली ओन्ड मीडिया ग्रुप है जो अक्सर बीथोवन और ब्रिटिश हिस्टोरिकली और कल्चरली इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट करता है अपने चैनल, अपने न्यूज के ऊपर मुख्तलिफ मेडली चला के, उनके शोज चला के, उनके कॉन्सर्ट्स करवा के। दूसरी मिसाल विंसेंट वैन गो की एक गवर्नमेंट ओन्ड एक आर्ट एग्जीबिशन है जो दुनिया की सबसे मशहूर एग्जीबिशन में से एक है, जहां पे उसको ट्रिब्यूट किया जाता है कि उसके ऊपर डिफरेंट एग्जीबिशंस है, वहां पे लाइट शोज लगाए जाते हैं, उनकी आर्ट दिखाई जाती है, उसकी पूरी पूरी लाइफ अचीव होती है, वो भी तो स्टेट ओन्ड है। हमें समझ नहीं आती कि किस तरह ये ट्रिब्यूट वाला जो आपका एक्सटेंशन है ये
एक्सक्लूसिवली प्राइवेट ओन करने से ही आता है। हम समझते हैं कि स्टेट भी ट्रिब्यूट दे सकती है और स्टेट अक्सर ट्रिब्यूट देती है अपने कल्चरली और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट और आइकन्स को। तो हमें समझ नहीं आती आपकी बातें कहाँ पे किस तरह ठहरती हैं। चलते हैं अपनी ओपनिंग की तरफ। हमारी ओपनिंग जो है ना आके एक बहुत बड़ा केस रिस्ट्रिक्ट करके जाती है, जब वो आके हमें ये बातें बताती है कि देखें कोई नहीं चाहता कि वो भागलपुर का नूर महल देखे। हमें समझ नहीं आती किस तरह आर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया आज सिर्फ कल्चरली और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। हम समझते हैं दोस्तों हाथ के ऊपर गलत है। एक, ये इस तरह गलत है कि इन कल्चरल हेरिटेज साइट्स की प्रिजर्वेशन के लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और इनके ऊपर काफी हद तक रोक और कटन है प्राइवेटली ओन करने के लिए पहले से ही। हमें नहीं समझ आती ये डिबेट का हिस्सा किस तरह बना दिया जाता है जबरदस्ती और इसके ऊपर एंगेज करने के लिए हमें फोर्स किया जाता है, लेकिन हम फिर भी एंगेज कर लेते हैं। किस तरह इसके ऊपर जो इनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि एक सोशल कैपिटल मिलता है, और क्योंकि कैपिटलिज्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जीशू की 3 जमातें इस डिबेट के अंदर, तो उन्होंने ये हमें भी मिसाल दिया कि किस तरह कैपिटलिस्ट आपको ये कहता है कि उन्होंने अपने मफाद के लिए उनकी मजबूरी बन जाएगी कि वो आज इस चीज को मेंटेन करेंगे। हम समझते हैं उनकी मजबूरी नहीं बनती, बल्कि उनकी मजबूरी से उन्हें शेयर करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। क्यों? बिकॉज जिस सोशल कैपिटल की आके अनम ने बात की कि इन अमीर लोगों को, जिससे ये सारी की सारी जमातें आज मुत्तफिक हैं कि अमीर लोग ही इस आर्ट को अफोर्ड कर सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस, उन अमीर लोग को इन गरीबों की वैलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गरीब लोग इनकी जूती के नीचे ही रहेंगे और हमें नहीं फर्क पड़ेगा कि हम गरीब क्या सोचते हैं, अमीर बंदे के पास कौन सी पेंटिंग है। वो पेंटिंग अपने दोस्तों के लिए प्राइवेट आर्ट्स के लिए वो करता है, वो पेंटिंग्स वो जला देता है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अमीर है। हम समझते हैं सोशल कैपिटल का जो उसका पॉइंट है ये हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। तीसरी आके इन्होंने हमसे बात की किस तरह पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स होती है ना वो न्यू कॉलोनियल स्टेट्स बनती है। आके हमारी सीजी के एक और बहुत बड़ा हमारे पे इल्जाम था। हम समझते हैं अगर ये पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स आज न्यू कॉलोनियल स्टेट्स हैं, तो फिर आज यही न्यू कॉलोनियल स्टेट्स तरह बांग्लादेश और इंडिया है, ये क्यों आज आके ब्रिटिश से अपने आर्टिफैक्ट वापस मांगने की कोशिश कर रही हैं? बिकॉज इनका तो सारा का सारा क्लेम ये था कि वो चाहती ही नहीं है इस कॉलोनियल माइंडसेट को यहाँ पे अपने लेकर आने के लिए, वो अपनी गवर्नमेंट का झंडा पोस्ट करना चाहती है। तो फिर आज के स्टेटस को के अंदर यही ममालिक, यही कॉलोनियल स्टेट्स ब्रिटिश म्यूजियम से क्यों रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे आर्टिफैक्ट वापस कर दें, और ब्रिटिश म्यूजियम उनको ये कह के रद्द कर देती है कि ये आर्टिफैक्ट्स जो इनमें से कुछ हम ओन करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी प्राइवेट एंटिटीज और प्राइवेट गैलरी से हमने लोन पे लेके यहाँ पे डिस्प्ले कराई हुई है, जिसको हम आपको वापस कर नहीं सकते बिकॉज हमारे ऊपर कोई इनका हक नहीं है। हमारे सारी की सारी एक्सचेंज से बिल्कुल एंगेज नहीं करते हसन एजाज आके, जब हम आपको ये बताते हैं कि एक बेटर रेपरेशन का सिस्टम एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे आके, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट, सारे के सारे कल्चरली और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट आर्ट स्टेट ओन करेगा, तो स्टेट के पास ज्यादा पावर होगी, ज्यादा कल्चरल पावर एग्जिस्ट करेगी, जिसकी वजह से वो डिप्लोमेटिक रिलेशन इन ममालिक से ज्यादा बेहतर बना पाएगा। क्योंकि अभी तो स्टेट कुछ कर सकता ही नहीं है बिकॉज वो स्टेट इन आर्ट को इन द फर्स्ट प्लेस ओन करता ही नहीं है। तो हमें समझ नहीं आती किस तरह ये साबित करना चाहते हैं कि ये कॉलोनियल स्टेट जो है ना ये चाहेंगी ही नहीं कि किस तरह हम इन सब बातों को करेंगे। तीसरी बात, इस ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर जो आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट करते हैं ना वो दो तरह के आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। एक वो आर्टिफैक्ट जो स्टेट ओन करती है, जो स्टेट ने एग्री किया हुआ है कि वो प्लंडर करती है, बिकॉज उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लैक कार्ड लगाया हुआ है, इस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आज से 100 साल पहले हमने ये कीनिया के अंदर किसी बंदे को मार के लिया था। और दूसरी सतह के ऊपर उसमें जो बाकी आर्टिफैक्ट एग्जिस्ट करते हैं ना वो या तो प्राइवेटली ऑक्शन कर दिए जाते हैं या फिर वो उनके पास एज अ लोन आते हैं। हम समझते हैं क्योंकि इन चीजों की वजूहात के ऊपर आपका स्टेट के इसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता, तो स्टेट इस चीज से एंगेज कर ही नहीं पाता कि किस तरह अगर वो चाहे भी कल्चरल एप्रिसिएशन करना, वो चाहे भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना, तो वो नहीं कर सकता। तीसरी बड़ी बात जिससे हमारी क्लोजिंग ऑपोजिशन ने बिल्कुल एंगेज नहीं किया, वो ये बात थी किस तरह एक आइडेंटिटी की जो एग्जिस्टेंस आपकी होती है ना, और जो कल्चरल आपको जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ये आपकी मॉनेटरी वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज करती है। अनम ने आज आपको एक पूरा तज्जिया प्रोवाइड किया किस तरह ये जो कल्चर और आर्ट होते हैं ना, ये कुछ लोगों के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी क्यों होता है, बिकॉज उनके लिए इस बात की एक्सेप्टेंस और एडमिटेंस कि हाँ हमारे साथ पुराने वक्तों में गलत किया गया था, उस बात की एडमिटेंस ही इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उस आर्ट की क्या कीमत होती है। और हम समझते हैं अगर कल्चरली इंपॉर्टेंट वो आर्ट आपके उस डिप्लोमेटिक रीजन, आपके उस कल्चरल रीजन में लुटा दी जाती है, तो आप एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल और आपकी आइडेंटिटी के ऊपर जो कर सकते हैं वो उठ जाता है। वो लुटा कब दी जाएगी? जब स्टेट के पास ये इख्तियार होगा कि उसे लुटा सकता होगा। हम समझते हैं आज के मुआशरे के अंदर आपके स्टेट का वो इख्तियार एग्जिस्ट नहीं करता, और हर वर्ल्ड के अंदर एक वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी हमने बताया कि आपके पास इस स्टेट के पास एक बेटर अकाउंटेबिलिटी मेजर्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। हमने आज आपको क्या दिखाया? हमने आज आपको अपनी ओपनिंग के ऊपर से एक डिस्टिंक्ट एनालिसिस दिया। हमारी ओपनिंग ने आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात की, हमने आपको एक ग्लोबल आइडेंटिटी और एक कल्चरल फिनोमेना की बात की, किस तरह वो क्रॉस कंट्री और एक ग्लोबलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट करता है। हमने अपने आपको ओजी से अपने डिस्टिंक्ट किया। हमने कि ओ से डायरेक्ट क्लैश करके जिस प्राइवेट आर्ट की वो बातें कर रही हैं, वो प्राइवेट आर्ट एक्चुअली उसकी हद से बाउंड नहीं होती, उसके अलावा काफी ज्यादा डिफरेंट तरह की आर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे सारा का सारा अनम का तज्जिया था। इस सतह के ऊपर हमने सीजी के पूरी सीजी की सीओ के एक्सटेंशन से एंगेज किया, और हमने बताया कि किस तरह उनकी एक्सटेंशन एक बबल के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि ना सिर्फ एक बहुत ही झूठ के ऊपर मबनी है, बल्कि एक अजीबोगरीब इंफरादी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है, जहां पे सारी की सारी बातें ठहरती नहीं है। इन तमाम वजूहात की वजह से हम समझते हैं सीजी भारी मार से जीत जाती है। शुक्रिया।
I thank the government whip for that fine speech and invite the opposition whip to end the debate for their side and as a whole. Hear, hear. And just 30 seconds, please. Sure. Am I audible? Yes, you are. Hello, am I audible? Yes, you are. Can you not hear me? Am I not audible? Yes, you are audible. Okay. So starting in 3, 2, 1. अच्छा, हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो क्लोजिंग गवर्नमेंट से वो ये है कि उन्होंने हमारी एक्सटेंशन के साथ एंगेजमेंट नहीं की, लेकिन इससे पहले हमें ये लगता है कि उनकी कोई भी एक्सटेंशन जो थी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थी और वो कहीं ना कहीं से ओपनिंग गवर्नमेंट की जो थी डेरिवेटिव्स थी। अच्छा, अब देखते चलते हैं कि हमारे सामने क्लोजिंग गवर्नमेंट ने क्या बातें की। तो पहली बात जो हमारे सामने क्लोजिंग गवर्नमेंट करती है वो ये है कि किस तरीके से देखें आप कि कल्चर और आर्ट के लोग ये जानेंगे कि उनके साथ गलत किया गया, और यही वो वाली बात है जो बेसिकली ओपनिंग गवर्नमेंट बार बार कर रही थी। इसके ऊपर हमारे बहुत ज्यादा मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं। अच्छा, पहला रिस्पॉन्स तो हमारा ये है कि देखिए जो है गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द टाइम वो मेजॉरिटी को अपीज करना चाहती है, तो हमें नहीं लगता कि वो यकीनन अगर माइनॉरिटीज हैं तो उनकी स्ट्रगल्स को सामने लेके आएंगी, पहली स्तर पर। लेकिन दूसरी स्तर पर अगर ये वाली बात मान भी ली जाए तो हमें ये लगता है दूसरी स्तर पर कि जो है गवर्नमेंट जो है एट द एंड ऑफ द टाइम अपने ही नैरेटिव्स को जो है रीइंफोर्स करना चाहेंगी, और यही वाली बात बेसिकली इनकी तीसरी बात भी थी जहां इन्हें लीगल मैकेनिज्म्स की बात की कि जो लीगल मैकेनिज्म्स जो है शायद स्टेट ज्यादा बेहतर तरीके से जो है अपने एग्जर्ट कर लेगी। अच्छा, इसके ऊपर जो है हसन इजाज की जो है एक्सटेंशन क्या थी जो इन्होंने नहीं सुनी। एक्सटेंशन बेसिकली हमारी ये थी कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स एट द एंड ऑफ द टाइम अपनी नेचर में भी कॉलोनियल ही हैं, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द टाइम गवर्नमेंट्स और ऑपोजिशन दोनों इस बात को कंसीड कर गई थी कि कहीं ना कहीं बहस पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की है, माइनॉरिटीज की है। तो ये आ जाकर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाती है, क्योंकि हम आपको समझा के जाते हैं कि किस तरीके से पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के अंदर जब आप ये काम कर रही होती हैं तो चूंकि वो अपने नेचर के अंदर कॉलोनियल माइंडसेट के साथ सोच रही होती हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि अपने कॉलोनियल मास्टर्स को खुश करें और उनकी बातों में पर्दा डालें। लेकिन इसको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ। हमारे सामने है कि किस तरीके से भगत सिंह जो है वो किस तरीके से हमारे सामने जो है एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन हम आज तक नहीं देखते कि पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर उसके बारे में बात की जा रही है। तो हमें ये लगता है कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स नेचर के अंदर कॉलोनियल हैं। क्या आपको लगेगा कि पाकिस्तान जैसे म्यूजियम्स के अंदर जलियांवाला बाग की डिपिक्शन की जाएगी? हमें लगता नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम कॉलोनियल जो मास्टर्स हैं उनके वो इस बात से खुश नहीं होते। तो इनका ये वाला पॉइंट कि जी लीगल मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं, सब कुछ होता है, हमें लगता है इररिलेवेंट हो जाता है। दूसरी इन्होंने बात की, उनकी बात ये थी जो अनम नसीर ने फर्स्ट बात की वो ये थी कि जी ग्लोबल कम्युनिटी एट द एंड ऑफ द टाइम जो है ना फेस सेविंग के लिए आपको प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और फिर क्या होगा कि शायद आप जो है आपको इस तरह के आर्ट्स जो दिखाने पड़ेंगे। हमें लगता है ये बात अपने अंदर झूठ है। वो इस तरीके से कि हमने देखा कि दुनिया के जेनोसाइड्स हो गए हैं, किस तरीके से म्यांमार में किलिंग्स हुई, कश्मीर में किलिंग्स हुई, लेकिन इसके अलावा जो है ग्लोबल कम्युनिटी ने उसके ऊपर जो है कुछ भी जो है रिप्लाई नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें ये लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इट इज गवर्न्ड बाय
by the benefits the state can have, यानी मफादात की सारी सारी सियासत होती है। और हम यही देखते हैं कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस हो या बाकी लोग हों वो इस मामले में चुप रहते हैं, लिहाजा हमें समझ नहीं आती है किस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर आएगा और एट द एंड ऑफ टाइम पाकिस्तान जैसे मुल्कों को या पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स को ये जो है पेंटिंग्स दिखानी पड़ेंगी जहां पर इनके लोग अप्रेस थे। तो हमें ये लगता है कि इनके ये वाले दोनों आर्ग्यूमेंट्स भी इस ऐवान के अंदर खड़े नहीं रहते। अब हमारे सामने जो हमारी मेजर एक्सटेंशन थी जिसके साथ इन्होंने एंगेजमेंट करने की कोशिश की, हमने आपके सामने रखा कि भाई किस तरीके से प्राइवेट आर्ट पर पाबंदी लगाकर जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्ट है, जो आर्ट प्रोड्यूस भी हो रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, आप उसके ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे। सिर्फ ये कह देना कि भी इसका एनालिसिस नहीं था, नहीं इसका एनालिसिस था। और वो एनालिसिस हमारे सामने दो मेजर आपके सामने एग्जांपल हमने रखी। एक हमने आपके सामने एग्जांपल रखी इटालियन रेनेसांस की। हमने आपको बताया कि किस तरीके से आर्टिस्ट को पैट्रनेज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको बताया कि ये पैट्रनेज जो है रियासतें तारीखी तौर पर नहीं देती हैं, क्योंकि रियासत नहीं चाहती कि उसके खिलाफ कोई बात की जाए, वो बल्कि ये चाहती है कि उसके हक में लिखा जाए। हमने दूसरी आपके सामने एग्जांपल रखी कि किस तरीके से मुगल्स के खिलाफ जो है बकायदा जो एक तहरीक चल रही थी फ्रंटियर्स के अंदर ओवरऑल स्टेटस को डिसरप्ट करने के लिए, वो भी अपने अंदर एलिटिस्ट थी। तो हमने इसके सामने आपके सामने इस एक्सटेंशन के एंड पॉइंट्स के रखे। हमारे सामने 2-3 एंड पॉइंट्स थे। पहला, हमने आपको बताया कि किस तरीके से एट द एंड ऑफ द टाइम जो आर्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपनी नेचर के अंदर कहीं ना कहीं एलिटिस्ट है, क्योंकि शायद जो गरीब बंदा है वो एट द एंड ऑफ द टाइम रोटी वगैरह के पीछे लगा हुआ है, उसको इस बात से सरोकार नहीं है कि मैं आर्ट प्रोड्यूस कर लूं। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आप एलिटिस्ट आर्ट के ऊपर कदगन लगाएंगे तो इसके जरिए से जो ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग आर्ट है उसके ऊपर कदगन लग जाएगी और वो सारा का सारा प्रोसेस जो है रुक जाएगा। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये नुकसानदेह है आर्ट के लिए। तो लिहाजा इस डिबेट के 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, एक आर्ट, दूसरा आर्टिस्ट और तीसरी सतह के ऊपर वो यूजर जो उस आर्ट को देख रहा है। हमें लगता है कि इनके इस प्रोसेस की वजह से आर्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, आर्टिस्ट को जो पहले पैट्रनेज एलिटिस्ट की हासिल है वो भी नहीं होगी, और तीसरी हिसाब से हमें लगता है कि यूजर्स भी फायदा हासिल नहीं करेंगे। अब हमारे सामने ओपनिंग गवर्नमेंट की बातें लेके हमें ये लगा कि ओपनिंग गवर्नमेंट के पास कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं था इस डिबेट के अंदर जो वो ऐड कर सकते। अच्छा, उन्होंने हमारे सामने क्या बातें रखी, उनके आप देखिएगा कि एंड पॉइंट्स कोई बेनिफिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे इस डिबेट के अंदर। उनका ये पॉइंट कि प्राइवेट ऑनरशिप के जरिए से आर्ट जो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हमें लगता है ये बहुत ज्यादा शुरुआत के ऊपर गलत है। पहली स्तर पर ये समझाते भी जाते हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, ये जिम्मेदारी थी बुनियादी तौर पर कि दे शुड हैव टोल्ड अस कि एक्सक्लूसिवली किस तरीके से ये बेनिफिट उनके मॉडल के अंदर होगा, क्योंकि ये बात तो करें कि यहाँ नहीं होगा, इनके मॉडल में किस तरीके से होगा। तो हमें इस तरीके से लगता है कि भाई क्या वो जो आर्ट एट द एंड टाइम प्रोड्यूस होगा और आप उस गरीब बंदे का फायदा करने जा रही हैं, क्या वो फ्री होगा? हमें लगता है बिल्कुल नहीं होगा। म्यूजियम्स अपनी फीस जो है वो ले रहे होते हैं। दूसरी स्तर पर इन्होंने कहा जी देखिए म्यूजियम्स तो ये जो है ना प्राइवेट म्यूजियम्स तो एट द एंड ऑफ द डे होते ही बड़े शहरों में। आप हमें बता के जाइए कि कहाँ चीचा वतनी के अंदर जो है म्यूजियम है। हमें लगता है पाकिस्तान के अंदर टोटल 2-3 म्यूजियम्स एग्जिस्ट करते हैं और वो भी बड़े शहरों के अंदर ही हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम म्यूजियम्स अपने नेचर के अंदर कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने पैसे अर्न करने होते हैं। तीसरी स्तर पर इन्होंने हमें कहा कि शायद जो है ना रियासतें बहुत बेहतर तरीके से टैकल कर लेंगी और जो है ना वो बहुत खुले दिली का मुजाहरा करेंगे और वो कहेंगी आए हम सारे आर्ट को दिखाते हैं। हमें लगता है ये बात झूठ है और हमें लगता है काउंटर प्रोडक्टिव है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये कि रियासत की मोनोपोली अगर फोर्स बहुत ज्यादा होती है, उसके पास जो है जुडिशरी भी होती है, जुडिशरी के जरिए से स्टेज ले सकती है। हमने तारीखी तौर पे ये काम होते हुए देखे हैं। अच्छा, दूसरी बात जो ओपनिंग गवर्नमेंट ने हमारे सामने की थी, अब ये पहले हमें बात का कोई टेंजिबल बेनिफिट नजर नहीं आया। दूसरी बात जो उन्होंने की थी वो ये की थी कि जो हुकूमतें ज्यादा अकाउंटेबल होंगी। हमें लगता है ये बात झूठ है। उसकी बुनियादी वजह जो ये वोटर बैंक को अपीज करना चाह रहे हैं, हमें लगता है एट द एंड ऑफ द टाइम अपीज नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो हुकूमतें हैं वो मेजोरिटीज को सामने रखते हुए जो है वो पॉलिसीज बनाती हैं। हमें लगता है कि ऐसी किसी कोई भी चीज जिसके अंदर माइनॉरिटी की डिपिक्शन हो रही है कि मेजॉरिटीज के ऊपर जो है अटैक करेगी, हमें लगता है हुकूमतें नहीं दिखाएंगी। तीसरी सतह पर हमें ये लगता है कि जो है इसकी अहम मिसाल जो है वो किस तरीके से रंजीत सिंह का जब स्टैचू जो है पाकिस्तान के अंदर लगाया गया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी बात नहीं की। अब क्लोजिंग ऑपोजिशन ये वाला मैच क्यों जीतती है? बुनियादी तौर पर हमने आपको समझाया कि किस तरीके से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर आर्ट अपनी नेचर के अंदर कहीं ना कहीं एलिटिस्ट है, उसके एलिट्स का एक बहुत बड़ा किरदार है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्ट है अगर आप उसको रोकेंगे तो उसकी वजह से आर्ट का भी प्रॉब्लम होगा और आर्टिस्ट का भी प्रॉब्लम होगा। और हमने इस बात को जो बैकअप किया फ्रॉम एग्जाम्पल। सेकेंडली हमने बताया कि किस तरीके से सारी की सारी बहस जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज की हो रही है वो अपने अंदर पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज भी कॉलोनियल इन नेचर है, वो नहीं चाहेंगी ये काम होगा। तीसरी हिसाब से हमने आपको बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स के केस कहीं पे भी फायदा नहीं कर रहे, उनके टेंजिबल बेनिफिट्स नहीं है। सो ऑन अ कंपैरेटिव क्लोजिंग ऑपोजिशन के केस के हमें लगता है आर्ट भी बच रहा है और आर्टिस्ट का भी फायदा हो रहा है और एट द एंड ऑफ द टाइम यूजर के पास भी कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा। हमें लगता है गवर्नमेंट ये बात बताने में नाकाम रही, लिहाजा द मैच गोज टू क्लोजिंग ऑपोजिशन। थैंक यू वेरी मच। I thank the opposition whip and indeed all of the speakers for an interesting debate.
I would say digitally cross floors, shake hands. This is an open round, I assume, which means